हम जानते हैं कि आज के दौर में महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, लेकिन वाकई सही मायने में औरतें कितना आगे बढ़ रही हैं ये अगर समझना है तो हम कह सकते हैं कि आज जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है वुमेन इनोवेटर डिफाइनिंग सक्सेस के नाम से यहाँ नई दिल्ली में, तो उसके माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि ये इनिशिएटिव जो है पूरे हिंदुस्तान में और कुछ और कंट्रीज़ की भी कुछ महिलाओं को कहीं ना कहीं सल्यूट कर रहा है। उन सबको अवार्ड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वजह उसकी ये है कि जब हम कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की जब बात हो रही है तो उसमें बहुत सी महिलाएं जो है वो बतौर एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आगे आ रही हैं और किस तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करके सक्सेस की नई इबारत लिख रही हैं। तो हमने यहाँ पर जिस तरह से कह सकते हैं कि 100 फेसेस जो है जिनका सिलेक्शन किया गया है उन सबको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और उनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में और बहुत सी महिलाएँ जो एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं, उनके लिए भी नए रास्ते खुलेंगे, उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। Women Innovator is, I think, a very innovative idea and a great way of encouraging women who are doing such good work. And not just that, it's a great way of building them, moving them from one level to another. Because here we have not just the entrepreneurs, we have the influencers. So the influencers have been allotted 4 women each. So the influencers are going to be mentoring the 4 women ahead and supporting them and taking them forward. So I think it will move women from one platform to another. Already there are very accomplished women, but I think this will further help. वुमेन इनोवेटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है फॉर वुमेन जो कि उन्होंने जो ऑलरेडी कुछ अचीव जिन्होंने किया है, यू नो दोज पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग, एंड उनको एक्नॉलेज करना और उनको उनसे इंस्पायर दूसरे लोगों को, दूसरी वुमेन को करना अमेजिंग. I must say that. Someone has rightly said, India does not have enough role models. Tripti, you prove us wrong. तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की. It was more about an ecosystem where one woman support another. So I thought this year I adopt 103. So I have and I will keep doing every year. I want to be an entrepreneur because we don't just want to stand behind every successful man. कहते हैं ना, behind every successful man there is a woman. तो उस चीज़ पे है कि I want to be an entrepreneur because we don't want to stand behind every successful man. We also want to be successful. क्योंकि मेरे भी हैं बहुत बड़े प्लान. As the head of the Economic and Trade Mission at the Embassy of Israel, we're promoting entrepreneurship from both sides. We're bringing Israeli startups to India and Indian startup to Israel. We're organizing delegation from Israel to India and vice versa in various sectors, and it is an opportunity for me to ask each and every one of you who's interested in the Israeli ecosystem of innovation and entrepreneurships to reach out to us at the Embassy of Israel, the Economic and Trade Mission, and we will be more than happy to assist in creating and straightening the bonds between Israel and the Indian entrepreneurs. The true Shakti are you, the women, and when we bring forth the women, it not just propels the economy, but it propels the overall cultural and social development of every country. मैंने बहुत सारी महिलाओं को, बच्चियों को फोक, ट्राइबल और कल्चरल आर्ट्स के लिए ट्रेन किया और इसी के लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था. और अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ये विलुप्त होती जा रही जो कलाएं हैं, ये अपनी आर्ट पीसेस के माध्यम से मैं वर्ल्ड की डिफरेंट आर्ट गैलरीज में डिस्प्ले कर सकूँ और अपने साथ उन बाकी महिलाओं को भी और ज़्यादा सशक्त बना सकूँ. This is a first rural women's bank in India. Our women, this is a bank started by women who have never been to the school. They said that we cannot read and write, but we can count. And they got the license. This is homegrown bank, no outside investors. It's women's savings, women capital, women and investment. Now I have started being a co-chair at World Economic Forum Davos. I have started a first rural women fund.
इनोवेटर जो विमेन प्लस इनोवेटर बनने का एक सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन है, आई थिंक दैट्स वेरी यूनिक एंड इट विल गिव अ बूस्ट टू अ लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री ट्राइंग टू डू गुड वर्क. It's a great event which combines both women entrepreneurship as well as innovation. So it's really a good opportunity to showcase all of the amazing work that's happening across the country. I designed a gender sensitive t-shirt. I organized a fashion show here in Delhi, funded by an NGO in an international school. I wrote one novel, 2 poem collection, and I started one website on positive news. I feel media need lot of positivity. We on our platform, we provide lot of key sources to highlight and to give a chance to all Indian rural artisans, especially females, and to encourage make in India products. It's an honor and privilege to have been here, other women innovator influencers, and to have spoken and pitched about my organization. It is my august privilege to also be hand-holding 4 women innovators, influencers, as well as faces at the Women Innovator here in New Delhi. We are extensively working on menstrual health management. We are manufacturing low-cost biodegradable sanitary pads. We're covering masses to classes. We have so far changed 2 lakhs women lives. We providing employment opportunity. We talk about menstrual cycle hygiene, we break various taboos related to it, we visit various slum areas, rural areas, urban slum areas, and we tell the women that it is a matter of proud that you are bleeding and it is nothing wrong, nothing bad. Indeed, it is a blessing from the God, not a curse. As a future of India, I see women as a power, as a Shakti, as she is indeed, and I believe that menstrual cycle will be taken as a positive aspect in Indian philosophy at a very high pace. मुझे भी आज इतने लोगों से मिलके, इतने विमेन एंटरप्रेन्योर से, विमेन सोशल एक्टिविस्ट से मिलके बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने इतना मुकाम हासिल किया है. ये शायद पहली बार है कि हम ये जनता के सामने ला पा रहे हैं. अभी हमने जस्ट ये किया है कि जब भी हमारी पंचायत में बेटी पैदा होगी उसके नाम से 11 पौधे लगाएंगे. इससे क्या होगा, एक तो जो हमारे देश में बेटियों की संख्या कम हो रही है वो संख्या बढ़ेगी, और साथ में जो हमारे जंगल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं वो भी बढ़ेंगे. The women here who have gathered have actually come from a various and a very varied field, and the work that they are doing is making difference not only to the lives of the women but on the larger scale. It is intervening with environment, it's intervening with the domestic economy, and it's intervening with empowering the communities. And the way COVI has organized it, I do compliment them for the way they are helping women innovators who have innovated in the field of different entrepreneurial exercises, do a good network, get investors, get market, and have a more successful enterprise in future. So I wish them a very a lot of success. ऐसे बहुत सारे प्रयास होने चाहिए. ये इनिशिएटिव ज़रूरी है, क्योंकि औरतें अगर अपने की अंदर की जो शक्ति है अगर उसे पहचानेंगी तो उसका असर हर जगह दिखेगा. पॉलिटिक्स में दिखेगा, वर्क प्लेस में दिखेगा, ऑफिसेस में दिखेगा, घर में तो दिखता ही है लेकिन वो सीमित दायरा होता है. तो वही जो अपनी स्किल्स है, जो उनकी मल्टीटास्किंग की स्किल्स है, सिंथेटिक और होलिस्टिक अप्रोच है जो औरतों की, जो मर्दों की नहीं होती है, तो वो सब अगर वो लाएंगी इसमें तो वो कॉर्पोरेट जगत में कितनी आगे बढ़ सकती हैं. और जब विमेन एंटरप्रेन्योर्स बाहर गए हैं या जब भी कोऑपरेटिव्स बने हैं, चाहे आप देखिए आनंद का और एग्जांपल्स देखिए, उन्होंने कमाल किया है. हम इस समय विमेन इनोवेटर में जहाँ पर हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, उनसे जानते हैं कि महिलाओं की शक्ति की जब बात होती है, सशक्तिकरण की, तो वो क्या महसूस करते हैं. देखिए, हमारे लिए तो महिला से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि एक महिला एक मेरी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया. बट आज जो ये मीटिंग यहाँ हो रही थी, जो वुमेन इनोवेटर, ऐसे कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे शहरों तक जाए, जहाँ लोग अभी भी महिलाओं को उनकी शक्ति नहीं देना चाहते, उनको दबा के रखना चाहते हैं. ये ऐसी गंभीर चर्चाएं वहाँ तक पहुँच जाए, और उसकी कैसे हो सकती है, हमें इस दिशा में चिंतन करना है. हमने इसमें देखा कि 18 साल की लड़कियां भी शामिल हैं, 60 साल की महिलाएं भी हैं. तो जब हम महिलाओं की शक्ति की बात कर रहे हैं तो भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि महिला शक्ति का और महिलाओं के सम्मान का सबसे बड़ा अगर कोई धरती है तो भारत है. आज भी हम कई देशों में जाते हैं जहाँ लोग कहते हैं 55 साल के बाद रहने लायक नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ माँ बाप को
वो अलग छोड़ दिया जाता है। हमारा देश है जहाँ 90 साल की दादी भी अगर बीमार होती है तो हम उसको ये नहीं छोड़ देते कि 90 साल की हो गई छोड़ो, उसको भी लेके उसी इंटेंसिटी के साथ अस्पताल जाते हैं। तो हमारी वो सारी पहचान रही है, वो छूट न जाए इसकी कोशिश करनी है। विमेन इनोवेटर डिफाइनिंग सक्सेस, हमने यहाँ पर देखा किस तरह से कि एक तरफ हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ की बात करें यानी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ की महिलाएं हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ की महिलाएं हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं अगर तो ख़ास तौर से उसमें भी स्टार्टअप्स में भी हमने देखा है कि बहुत सी यंग लड़कियाँ और महिलाएँ हैं जो कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रही हैं, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में ना सिर्फ इन्वॉल्व हो रही हैं बल्कि अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं और सक्सेस स्टोरीज जब हम बात करते हैं तो एक मिसाल के रूप में सामने आ रही हैं। हमने यहाँ पर ये भी सुना जब बहुत से लोगों ने अपने विचार यहाँ पर शेयर किए, अपनी लाइफ के स्ट्रगल, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, तो समझ में ये आया कि सब कुछ इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अगर आपकी ललक सच्ची हो, अगर आप मेहनत करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत लोगों के लिए आप एक मिसाल भी बन सकते हैं। तो हमने देखा कि हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर, महिलाएं जो 100 फेसेस की बात हो रही है वो हमने यहाँ पर देखे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसमें अलग अलग फील्ड्स की जो महिलाएं हैं किस तरह से सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं, नोबल कॉज के लिए काम कर रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके काम को एक्नॉलेज किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। एक और बहुत प्यारी बात जो इस मंच पे हमने महसूस की कि ये इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च तो किया ही गया, साथ ही साथ हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से एक चेन बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि जिसमें महिलाएँ जो हैं आगे और कुछ महिलाओं को अपने साथ जोड़ें, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताएं, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, उसके कुछ गुण वो उनसे प्रैक्टिकली सीखें और समझें। तो ये एक अपने आप में बहुत प्यारी पहल कही जा सकती है। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म था, जिस तरह से इस इनिशिएटिव को यहाँ पर आज विमेन इनोवेटर के नाम से लॉन्च किया गया, तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा महिलाएं जो हैं, आज 100 फेसेस थे, उम्मीद करते हैं कि और महिलाएं जो हैं वो आगे आएंगी और इसी तरह से सिलसिला बढ़ता रहेगा।